अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर आपकी बुक का है 232। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। उसी से रिलेटेड आपकी बुक में उसी टॉपिक के एंड पे बेटे एक एग्जांपल दी गई है। वो एग्जांपल हम अब करेंगे, एग्जांपल 10.3। एन इलेक्शन enters into a uniform magnetic field perpendicularly with a speed of 10 raised to power 4 meter per second. What part the electron will move along inside the field? आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है, मैस गिवन है और E गिवन है। हमने क्या फाइंड करनी है यहाँ पे? फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। आपने ये मैंने आपको ड्राइव करवाई थी इक्वेशन, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। और जो Q हम लेंगे वो क्या लेंगे? ये E की वैल्यू लेंगे, ठीक है। और जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है बेटे? वैल्यूज पुट करनी है। F हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q की जगह हमने E लिया, इसलिए यहाँ पे हमने F में क्या लिख दिया? EVB, ठीक है। अब EVB MV स्क्वायर ओवर R है। R आपने फाइंड करना है। R अगर वहाँ पे जाएगा तो ये इसकी जगह पे आ जाएंगे। ये भी V है और एक ही V है। V और V से एक V कट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक V रह जाएगा बेटे। ये V और ये V कैंसिल हो जाते हैं। आपकी इक्वेशन एंड पे जो रह जाएगी वो क्या रह जाएगी? R इज इक्वल टू MV डिवाइडेड बाई EB। और आप यहाँ पे क्या फाइंड करोगे? आप फाइंड करोगे रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? ये वो रेडियस है सर्कल का जिसपे ये वो पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इजी सा न्यूमेरिकल है। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है? वैल्यूज़ ही पुट करनी है, बाकी यहाँ पे कोई इस तरह की डिफ़िकल्टी नहीं है। हम चलते हैं बेटे अपने आज के टॉपिक की तरफ। बुक का पेज नंबर आप लोग ओपन करें 233। टॉपिक हमारा है 10.5 वेलोसिटी सेलेक्टर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। A velocity selector is a device used to determine the velocity of a charged particle. In this device, electric and magnetic forces are applied to the moving particle in such a way that they balance each other only for one value of velocity, allowing the particle to continue moving in a constant velocity. Consider a particle with a positive charge plus q that enter a uniform magnetic field B at right angle to it with the velocity v. The magnetic force acts on the particle in the upward direction as shown in figure 10.11. To balance this magnetic force, an electric force must act downward on the particle. The velocity selector consists of a cylindrical tube located with a magnetic field B. Inside the tube is a parallel plate capacitor that creates a uniform electric field E. The electric field E is oriented perpendicular to the magnetic field B as shown in figure 10.12. When a charged particle entered the left end of the tube, then the magnetic force acts upward, while the electric force acts downward in the direction of the electric field E on the positively charged particle. If the strength of the electric and magnetic fields are adjusted appropriately, the forces will cancel each other out. With no net force acting on the particle, its velocity v remain constant in accordance with Newton's first law. As a result, the particle move in a straight line at a constant velocity and exits the right end of the tube. The particle with velocity different from v will be deflected and will not exit at the right end of the tube. The magnitude of the velocity selected can be determined as below. As the velocity v is perpendicular to both B and E, therefore magnetic force upward, electric force downward, force no deflection of particle. और आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ये मैं आपको ड्राइव करके बेटे दिखाती हूँ। हमने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया, मैंने जो आपको बताया, डैट इज़ वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास आता है व्हाट इज़ वेलोसिटी सेलेक्टर। आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी सेलेक्टर बेटे एक डिवाइस है। क्या है ये? एक डिवाइस है जिसे यूज़ किया जाता है टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए
जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। इसको अंडरलाइन कर लो, ये डेफिनेशन होगी किसकी, वेलोसिटी सिलेक्टर की। दोबारा बता देती हूँ, वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बेटे डिटरमिन करते हैं। ठीक, क्लियर। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बेटे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं उनको अप्लाई किया जाता है किसी भी मूविंग पार्टिकल पे, इस तरह से कि दोनों की दोनों फोर्सेस जो हैं ये बैलेंस करें दोनों एक दूसरे को, और ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और अलाउ करें पार्टिकल को कि वो कंटिन्यू करता रहे मूव करना विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि बेटे इस डिवाइस में दो फोर्सेस होंगी, एक होगी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स और एक आपके पास होगी इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस हम अप्लाई करेंगे मूविंग पार्टिकल के ऊपर सच दैट कि ये दोनों फोर्सेस दे बैलेंस ईच अदर, और जो आपकी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वन जो है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रहे, और जो पार्टिकल है वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करता रहे। इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे एक पार्टिकल जो कि जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू, और वो एंटर होगा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। ठीक है, और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वी से। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसका पार्टिकल पे एक्ट करेगी, यानी कि दो फोर्सेस एक्ट करेंगी ना, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन इन दोनों जो फोर्सेस हैं इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी बेटे वो अप्लाई होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसी ऑपरेटर्स में हमारे पास एक वेलोसिटी सिलेक्टर जो है जो हम पढ़े हैं, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जो है वो लगी होती है, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट होती है, और ट्यूब के अंदर एक प्लेट कैपेसिटर जो है डैट इज़ आल्सो प्लेस्ड। और इस प्लेट कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको क्रिएट करेगा, और ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ड्रॉ करके फिर हम आगे फर्दर इसको जो है वो एक्सप्लेन मैं आपको करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेलोसिटी सेलेक्टर। मैं आपको इसकी डायग्राम बेटे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ ऐसे इसकी डायग्राम ड्रॉ करें। हम क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, ये जो मैं डायग्राम बनाती हूँ और साथ साथ यहाँ पे हेडिंग्स दे रही होती हूँ, मेरा मकसद यही होता है कि अगर पेपर में आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोग किस तरह से लिखोगे नोट की फॉर्म में। वेलोसिटी सेलेक्टर, सबसे पहले आएगी इसकी स्टेटमेंट। आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, अ वेलोसिटी सिलेक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और इस डिवाइस में हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं किसके ऊपर, मूविंग पार्टिकल के ऊपर, सच डैट ये दोनों की दोनों जो हैं बैलेंस करें फॉर ईच अदर फॉर वन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और पार्टिकल को अलाउ करें कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करें। आप लोगों ने बेटे क्या करना है, आपने एक पार्टिकल को कंसिडर करना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो एंटर होगा, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उस पार्टिकल पे एक्ट होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और उस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ अप्लाई करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, आप सपोज करो ये x x x, ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं, मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले रही हूँ यहाँ पे। ठीक, हमने ये सपोज किया, यहाँ पे आप सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, लेट अस सपोज, हम इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास अपवर्ड
और यहाँ पे एक आप ग्राफ इस तरह ड्रॉ करो, ये क्या हो जाएगा v। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, कंसिडर अ पार्टिकल विद द पॉजिटिव चार्ज। ये क्या चीज़ है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली इसका पता चल जाए। हमने क्या कंसिडर किया, एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जो कि एंटर हुआ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो फोर्स होगी वो हमारे पास एफ बी आएगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से राइट करते थे, आपको पता था, कैपिटल बी के साथ। हमने अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, ये v जो है वेलोसिटी है। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स, ये जो मैंने एफ बी यहाँ पे ड्रॉ की, ये एक्ट होगी इस पार्टिकल के ऊपर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड डायरेक्शन है। इस अपवर्ड डायरेक्शन को, अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी एक्ट करेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ताकि जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दोनों बैलेंस हो सकें। ठीक है, ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकें। ठीक है, इसी तरह फिर आगे हम फर्दर चलेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, हमने अब क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग याद होगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आएगी। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब। यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर बेटे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जो है वो लोकेट होती है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड बी। अभी मैंने यहाँ पे आपको राइट भी कर दिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। इस ट्यूब के अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा होता है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई को क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओरिएंटेड होगी प्रिपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यही जो ई है ये अब प्रिपेंडिकुलर होगा टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी। इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक ये 1, इसी के ऑपोजिट नीचे भी ऐसे ही ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस चार्जेस हमारे पास हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसी के ऑपोजिट नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो इसकी ये डायरेक्शन है। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग ऐसे आप लोग क्लोज करोगे इसको यहाँ से भी क्लोज कर लो और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे। ठीक है, ये जो मैंने ओपन पाथ रखा, यहाँ पे आप लोग पहले स्ट्रेट लाइन, इसकी डायरेक्शन ये रखोगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाओ। मैं ड्रॉ कर लूँ देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ बेटे। यहाँ पे आपका ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये और ये क्या है हमारे पास, प्लस क्यू हो गया। ठीक है, और ये हमने जैसे पहले यहाँ पे ड्रॉ किया था वही चीज़ यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने क्या कर ली, डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब इस डायग्राम को गौर से देखो और देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। हमने क्या किया, मैंने आपको बताया वेलोसिटी सिलेक्टर जो है कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि लोकेट है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड बी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब आती है। सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और ये पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है इसका फंक्शन क्या है कि बेटे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है उसको क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है बेटे ये प्रिपेंडिकुलर होगी टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी। इज दैट क्लियर, अब समझ आ गई है। अब हम चलेंगे बेटे इसकी वर्किंग की तरफ। ये तो हमने कर ली इसकी कंस्ट्रक्शन।
नाउ वी विल मूव टूवर्ड इट्स वर्किंग। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पे कि यहाँ पे अब वर्किंग होगी क्या है, एक्चुअल यहाँ पे क्या होगा। जब चार्ज पार्टिकल बेटे लेफ्ट एंड ऑफ ट्यूब, ठीक है मैंने क्या कहा, जब चार्ज पार्टिकल लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट एंड ऑफ द ट्यूब है, लेफ्ट एंड ऑफ द ट्यूब से एंटर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगी वो कहाँ होगी, वो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने क्या कहा, जब चार्ज पार्टिकल बेटे लेफ्ट एंड ऑफ द, ये पूरी ट्यूब है जो हमने भी ड्रॉ की, चार्ज पार्टिकल जब एंटर होता है लेफ्ट एंड ऑफ द ट्यूब से तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक्ट होती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज की हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर बेटे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है एडजस्ट हम लोग कर लें अप्रोप्रिएटली, तो दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर क्या जो टोटल फोर्स अब एक्ट करेगी वो क्या होगी, नो फोर्स होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या किया, कैंसिल कर दिया। जब इन्होंने बेटे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो उसका मतलब हुआ है कि नो नेट फोर्स अब यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रही है, पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स अब एक्ट नहीं हो रही। इस केस में वेलोसिटी यानी कि जो v है, जिस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने मेजर करने हैं, वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। पार्टिकल जो है वो मूव करेगा इन स्ट्रेट लाइन, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे शो की, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, और ये एग्जिट कर जाएगा, निकल जाएगा ट्यूब के राइट एंड, ये लेफ्ट एंड था, राइट एंड से जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यहाँ से देखो मैंने बंद नहीं की ट्यूब, यहाँ से जो मैंने डॉटेड लाइन शो की यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा, ट्यूब से निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, और एग्जिट कर जाएंगे वो राइट एंड ऑफ द ट्यूब के साथ, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन हमारे पास नहीं होगी। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हमने क्या किया था, देखो मैंने आपको बताया था कि एफ ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ बी के इक्वल। एफ ई किसके इक्वल है, हमने पढ़ा हुआ है क्यू ई के इक्वल है। एफ बी किसके इक्वल है बेटे, क्यू वी बी के इक्वल है। ये तो पता है ना, ये तो हम इक्वेशन कर चुके हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। अब क्यू से अगर क्यू मैं कैंसिल कर देती हूँ, ये क्यू इस क्यू से कट जाता है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ई इज इक्वल टू वी बी रह जाता है। हमने अगर वी फाइंड करना है तो वी इधर आ जाएगा, ई उसकी जगह पे आ जाएगा, ई बाय बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये क्या होगी, हमारी होगी वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी सिलेक्टर से क्या मेजर करना था, वेलोसिटी मेजर करनी थी, तो ये है आपकी इक्वेशन कि आप वेलोसिटी किस तरह से बेटे मेजर करेंगे। डिफरेंट पार्टिकल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी जो है फ्रॉम वी विल बी डिफ्लेक्टेड एंड विल नॉट एग्जैक्ट एट द राइट एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स आते हैं, दो यहाँ पे मेन चीज़ें होंगी जो आपने याद रखनी है। दो पॉइंट्स मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देती हूँ। इफ़ अगर आपका एफ ई जो है वो ग्रेटर होगा एफ बी से, और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपका एफ ई जो है वो स्मॉलर होगा देन मैग्नेटिक फोर्स है। ये मैग्नेटिक फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। दो यहाँ पे केसेस हैं बेटे, मैग्नेटिक फोर्स जो है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फोर्स, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, देन क्या होगा कि पहले हम इसकी बात करते हैं कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स बेटे ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फोर्स से, देन मूविंग डाउनवर्ड टूवर्ड नेगेटिव प्लेट जस्ट हॉरिजेंटल, ठीक है, ये मूव करेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। और अगर आपका ये वाला केस आता है कि आपकी मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, देन जो पार्टिकल्स हैं वो क्या मूव करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो अपवर्ड मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और अगर एफ ई बड़ी होती है तो वो कहाँ मूव करेंगे, वो मूव करेंगे डाउनवर्ड टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। ये क्या थी हमारी, ये थी, दिस इज नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा नेगेटिव प्लेट। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट।
एंड पे मैंने आपको यहाँ पे दो उसके केसेस बता दिए मेन, कि पार्टिकल जो हैं अगर उनकी डिफरेंट वेलोसिटी हो, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्टेड होंगे और वो राइट साइड ऑफ द ट्यूब से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे अगर डिफरेंट वेलोसिटीज़ हों। तो उस केस में अगर आपकी एफ ई ज़्यादा है तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगे टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, ठीक है। मैं इधर लिख देती हूँ, इस केस में वो कहाँ मूव करेंगे, डाउनवर्ड, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड टू नेगेटिव प्लेट। और इस केस में ये मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में टू वर्ड पॉजिटिव प्लेट। इसको खुद सेंटेंस की फॉर्म में लिख लो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा था कि आपको याद रहे। हमने क्या कर लिया, मैंने आपको क्या बता दिया कि बेटे अगर पहले तो हमने ये कर लिया था ना कि कंडीशंस जब हमारे पास यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन, यानी कि जब डिफ्लेक्शन हुई नहीं थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कब हमारे पास केस था, जब नो डिफ्लेक्शन, जब डिफ्लेक्शन नहीं होती तब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है v इज टू ई बाई पी। लेकिन अगर पार्टिकल्स जो हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी जो हैं इससे डिफरेंट अगर इनकी हो, यानी कि वो डिफ्लेक्ट हो रहे हों, तो फिर क्या होता है, फिर ये होगा कि जैसे पहले तो वो आराम से यहाँ से एग्जिस्ट कर गया, इधर से निकल गया ना पार्टिकल, लेकिन अब वो निकलेगा नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फोर्स, तो वो मूव करेंगे डाउनवर्ड, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड मूव कर लेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे एरो शो किए हुए थे, टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फोर्स, तब आपके जो पार्टिकल हैं उनकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी और वो पॉजिटिव की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। क्लियर हो गया। तो बेटे मैंने आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे अपना जो वेलोसिटी सिलेक्टर है उसको मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने वेलोसिटी सिलेक्टर को आपको इसकी डेफिनेशन बताई। मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी सिलेक्टर एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और इस डिवाइस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं, किसके ऊपर, मूविंग पार्टिकल के ऊपर, सच दैट दे बैलेंस ईच अदर। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि हमने कंसिडर करना है एक पॉजिटिव चार्ज जो कि एंटर होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, इट मूव विद वेलोसिटी v, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताई। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा कि वेलोसिटी सिलेक्टर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ट्यूब लोकेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और इस ट्यूब के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा होता है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट करता है, ठीक है। और ई जो है ओरिएंटेड होती है, उसकी डायरेक्शन जो है प्रिपेंडिकुलर होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड। ई की डायरेक्शन क्या होगी, प्रिपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद बेटे हमने क्या किया, हमने इसकी वर्किंग की। वर्किंग में मैंने आपको क्या बताया कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर होगा, कहाँ से बेटे, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट एंड ऑफ द ट्यूब से जो है ये एंटर होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी अपवर्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से एंटर होंगे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, तो ये दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। यहाँ पे जो फोर्स अब एक्ट करेगी वो क्या होगी, होगी नहीं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। सो नो फोर्स यहाँ पे जो है विद नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, वेलोसिटी जो है इसकी वो कांस्टेंट रहेगी, और पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो एग्जिस्ट कर जाएगा, इस ट्यूब के अंदर से निकल जाएगा, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता हुआ यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये कब निकलेगा, कब स्केप होता है बेटे, जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। जब एफ ई जो है वो एफ बी के इक्वल हो जाएगी, जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो हमने उसके लिए इक्वेशन ड्राइव की थी। फिर मैंने आपको दो बातें और बताई थी कि पार्टिकल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी जो हैं, कभी कभार उनके अंदर डिफ्लेक्शन
बी हो जाती है, दे विल बी डिफ्लेक्टेड। पहले हमने केस पढ़ा था जब नो डिफ्लेक्शन हो रही थी। अब जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि अगर डिफ्लेक्शन हो तो वो राइट एंड ऑफ द ट्यूब से जो है वो निकलेंगे नहीं। पहले तो जब डिफ्लेक्शन नहीं हुई तो वो पास हो गए ना, यहाँ से निकल गए, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन होगी तो वो यहाँ से पास नहीं होंगे, या वो अपवर्ड चले जाएंगे या वो डाउनवर्ड चले जाएंगे। अपवर्ड वो कब मूव, डाउनवर्ड कब मूव करते हैं, जब एफ ई जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेटर होती है मैग्नेटिक फोर्स से, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू एफ बी मैग्नेटिक फोर्स, तो वो मूव करेंगे अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको आपने अच्छी तरह से करना है। मैंने आपको इसको हेडिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख के दिया ताकि अगर इन केस आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है या इसके ऊपर नोट आता है तो बेटे आप ऐसे ही राइट करो, ऐसे ही इसकी डायग्राम ड्रॉ करो। पहले आपने वेलोसिटी सेलेक्टर की हेडिंग लेनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, फिर ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर वर्किंग लिखोगे। इन द एंड आपने ये दो स्पेशल यहाँ पे केसेस भी बता देने हैं। इज डेट क्लियर? आगे चलते हैं इसी टॉपिक के आगे। अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे हमें बिल्कुल एंड ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर के बेटे यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दी गई है। इस एग्जाम्पल को अगर आप नोट करो इसके ऊपर। एग्जाम्पल हमारे पास है 10.4, आपकी बुक का पेज नंबर है बेटे 234। एग्जाम्पल नंबर 10.4 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। Alpha particles ranging in speed from 1000 meter per second to 2000 meter per second entered into the velocity selector where electric intensity is 300 meter v per meter and the magnetic induction is 0.20 t. Which particle will move undeviated through the field? आपको यहाँ पे E गिवन है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे क्या गिवन है, B गिवन है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जो इक्वेशन मैंने आपको भी जस्ट डिराइव करवाई है, हमने क्या यहाँ पे ड्राइव किया है इक्वेशन v इज इक्वल टू ई बाय बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने वही इक्वेशन लिखोगे, v इज इक्वल टू ई बाय बी। ई आपको गिवन है, ई की वैल्यू दी हुई है, बी भी आपको गिवन है। ई और बी आप यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करो और इनको कैलकुलेट करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो आपका वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हमने यहाँ पे उतार लिया। इज डेट क्लियर? तो अल्फा पार्टिकल जो हैं उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1500 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। विल मूव अनडेविएटेड थ्रू द फील्ड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 10.5। A charged particle moves through a velocity selector at a constant velocity in a straight line. The electric field of the velocity selector is 4.8 into 10 raised to power 3 n per coulomb, while the magnetic field is 0.2 t. When the electric field is turned off, the charged particle travel on a circular path of radius 3 cm. Find the charge to mass ratio of the particles. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका सोल्यूशन। पार्टिकल जो है बेटे वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन प्रिपेंडिकुलर है उस पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों फील्ड्स की तरफ, मैग्नेटिक जो फोर्स है उसकी तरफ भी और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी तरफ भी। ठीक है, तो हम जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वही इक्वेशन जो मैंने आपको भी ड्राइव करवाई है, क्यू ई यानी कि एफ ई जो है वो आपका इस केस में भी उसी के इक्वल है। आपको इधर बताई भी है ना कि दोनों की डायरेक्शन जो बोथ ई एफ ई किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल है। तो वो बस एक एफ ई और एफ बी यहाँ पे मिसिंग है, दोनों की इक्वेशंस पुट करना है। वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई बाय बी आ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे बेटे यहाँ पे मेंशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्न ऑफ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न ऑफ कर दी जाती है तो पार्टिकल जो है वो मूव करेगा इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, और सर्कुलर पाथ में रेडियस आपको दे दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो फोर्स, अब जब कोई भी पार्टिकल सेंटर बेटे सर्कल में मूव करता है तो जो फोर्स उसको रिक्वायर्ड होती है टू मूव इन सर्कल वो कौन सी होती है, डेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और एफ हमने ऊपर क्या लिखा था, एफ किसके इक्वल थी हमारी, एफ बी, वो इक्वल थी बी क्यू बी के, तो मैंने उसकी जगह बी क्यू बी लिख लिया। और जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड थी वो कौन सी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एम वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर 4 टू मास रेशो करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, क्यू और एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी और बी आर, क्योंकि वो मैंने भी इक्वेशन में आपको क्यू से क्यू कट करवाया था ना, वही यहाँ पे कटिंग हुई है बेटे और कुछ नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, जो हमारी ऊपर आई है ई बाय बी, वो आप लोग पुट करोगे इस इक्वेशन में। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, क्यू बाय एम इज इक्वल टू ई बाय बी स्क्वायर ओवर आर।
अब हम क्या करेंगे बेटे, हमें क्वेश्चन में ई की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और आपको रेडियस भी यहाँ पे जो है वो गिवन था। हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड जो है वो वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर kg। इज डेट क्लियर? अच्छा बेटे, ये जो एग्जांपल्स है ना, जनरली एग्जांपल्स जो है ना मैं आपको ओरली ही करवाती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी बुक में सोल्यूशन फॉर्म में दी गई होती हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं ओरली ही समझा रही होती हूँ। इंशाल्लाह हमारी एक दफ़ा बुक ख़त्म हो जाए, मैं आपको फिजिक्स के तमाम बुक के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं खुद करवाऊंगी, क्योंकि उनका सोल्यूशन तो बुक में दिया नहीं होता, तो इसलिए आपने वरिड नहीं होना कि वो भी शायद मैं आपको ओरली करवा दूंगी। मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह इस बुक के कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 10.5 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके साथ ही बेटे हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, डैट इज़ वेलोसिटी सेलेक्टर। आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्राडेस लॉ जो है हम स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।